Hope the screen is visible to everyone. Now the second chapter of our first module, that is first module, was already we started as a complex analysis, and in that first chapter was a line integral, or we can say that is complex integral. Second chapter is Cauchy's theorem. So moving ahead, Cauchy's theorem. So one by one we shall start. The Cauchy is also again the name of scientist. Already you had a uh, about the Cauchy's Riemann equation in complex variable ux is equal to vy and uy is equal to minus of vx. So similar kind of concept we have to utilize here by using Cauchy's integral formula. So moving ahead. Now the first formula which we have to use only without proof. No need to verify this formula. Only you have to apply the formula for problem solving. So the first formula we are using Cauchy's integral formula. Cauchy's integral formula. This is also known as a fundamental formula. So what this formula stated is, if if f of z is analytic f of z is analytic inside and on a closed curve C of a simply connected region R, and if z0 is any point within C, then f of z0 is equal to 1 by 2 pi I integral f of z upon z minus z0 into dz.
z minus z0 into dz, or we can say this formula as, that is, integral f of z upon z minus z0 into dz is equal to 2 pi I into f of z0. So this is our, we can say that is a Cauchy's integral formula. By using Cauchy's integral formula, we will solve few numericals. So this is first formula, and the one more formula is there for derivatives. For derivatives, the formula is similar. We have to just derive. So this is a formula. First formula we have to utilize, either use this or this, both are the same concept. And the second formula, differentiating under integral sign. If you're aware about it, that is the second same DUIS with parameter z0. Then we have to utilize one more for thing is, that is integral f of z upon z minus z0 into dz raised to power n. Just see here, power is absent, and here it is power is equal to 2 pi I upon n minus 1 factorial f raised to n minus 1 of z0. So this is again one formula we have to utilize. This two formula. The first one is this without derivative, and this is for second with DUIS or differentiation under integral sign. So we have to use this formula for solving a problems. So for example, we will taking one or two problems so that you will understand very well. And one more thing, that is converse of Cauchy's theorem. I will explain during the solving a problem of converse of Cauchy's theorem. So one by one we have to solve problems which is based on this part. So first problem I'm taking, this is just explanation of Cauchy's integral formula. Hope all of you got uh, or understand this formula. The formula is clearly simple, that is if f of z is analytic function or analytic inside and on a closed curve, inside and on a closed curve of a simply connected region R, and if z0 is any point within C, then f of z within C means what? वो जो रीजन रहेगा उसके अंदर ही ये पॉइंट होना चाहिए. If point lies outside the region or on the region, then it is zero. That's it. This is converse of Cauchy's integral formula. अगर आउटसाइड द रीजन है या ऑन द, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्लोज रीजन को सर्कल कंसिडर कर देते हैं, तो इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट होगा उसके लिए ये दोनों फॉर्मूले यूटिलाइज करेंगे. ये पावर बेस्ड है. अगर पावर रहेगा मतलब z माइनस z0
तो n है तो डेरिवेटिव यूज करना है आपको. दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ अ क्वेश्चन. This is a format of a question and this is a solution of the question. This is a format of a question and this is solution of the questions. So on the circle अगर है, पॉइंट अगर सर्कल पे है तो भी वो जीरो होता है, आउटसाइड द सर्कल भी जीरो होता है. ओनली इनसाइड द रीजन और इनसाइड द सर्कल, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको कहा कि यू हैव टू कंसीडर योर रीजन इज अ सर्कल. So that's why if point lies inside the circle, then we have to calculate by using Cauchy's integral formula. Rest if point lies outside the circle or on the circle, then the result is clearly zero. So you should aware about that. This is Cauchy's integral formula. There it is converged. Cauchy's integral formula is also known as a Morera's theorem, and that Morera's means on the regions or outside the region is equal to zero. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो मैं ऑलरेडी लिखूंगा वहाँ पे, तो कई बार होगा तो उसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है. नाउ होप दिस थिंग्स आर क्लियर. नाउ मूविंग अहेड with the problems. So the first problem, evaluate contour integral or closed integral sine raised to 6z upon z minus pi by 6 raised to power 3 into dz, where c is where c is mod of z equal to 1. C is mod of z equal to 1 means what? It is a circle which having z equal mod of z equal to 1. So I am starting with the solution. So this is a circle. Now consider this is mod of z equal to 1. Just a second. Okay. So
or x-axis as well as y-axis. Now we have to write here the contour. The contour mod of z equal to 1 is a circle with center at origin with center at origin and radius unity. Unity or 1. Hence the point. Hence the point which point? ये point जो डिनोमिनेटर में रहेगा z minus z0. So hence the point z equal to pi by 6 lies inside circle. क्यों lies inside the circle? आप check कर लो. If you want to verify ये पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, ये z इक्वल टू 1, मतलब रेडियस क्या है यहाँ से 1 तक है पूरा. तो ये z इक्वल टू पाई बाय 6 अगर यहाँ पे रखते हो आप, साइन रेस टू 6 पाई बाय 6 कितना होता है उसका वैल्यू, यू कैन जस्ट कैलकुलेट एंड जस्ट वेरीफाई. 1 है, 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, क्या आता है. सो साइन पाई बाय 6 you can say it is means 30 degree. Sin pi by 6 means 30 degree. Then 30 degree is what? 1 by 2. Sin 0 0, sin pi by 6 is 1 by 2. तो 1 by 2 का पावर अगर 6 टाइम भी करोगे तो भी वो 1 से लेस ही आएगा, आपको 1 से छोटा ही आएगा. दैट्स वाई वी कैन से दैट रेडियस इज यूनिटी. तो z इक्वल टू जब पाई बाय 6 आप यहाँ पे रख दिए तो साइन रेस्ट, ये फंक्शन है आपका, ये फंक्शन में हमेशा रख के चेक करना रहता है. ये z माइनस जेड जीरो, तो जेड जीरो जो भी रहेगा वो वैल्यू उठा के फंक्शन में रख के चेक कर देगा. तो यहाँ पे साइन रेस टू 6 जेड है, z इक्वल टू पाई बाय 6 रखोगे तो साइन रेस टू 6 पाई बाय 6, सो इट विल बिकम्स व्हाट, 1 by 2 का पावर 6, then it is less than 1, therefore it lies inside the circle, or z equal to pi by 6 lies inside c means circle. Hope this things is clear. Therefore f of z equal to sine raised to 6z is analytic. अगर नहीं रहता इनसाइड द सर्कल तो हम उसको एनालिटिक नहीं लिखते. इन एंड सी. तो वी हैव टू यूज द सेकेंड फॉर्मूला हियर बिकॉज इट इज पावर n है यहाँ पे डिनोमिनेटर का. सो वी हैव टू यूज इंटीग्रल और काउंटर इंटीग्रल एफ ऑफ जेड. एक मार्क से पूरा फॉर्मूला लिखने को आपको, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो रेस टू पावर n into dz, which is equal to 2 pi I upon n minus 1 factorial f raised to n minus 1 z0. So hope things are clear to everyone. This formula यहाँ पे inside the circle क्या है, क्यों है. तो f of z हमारे पास है यहाँ पे. Therefore we have f of z which is equal to sine raised to power 6z.
साइन रेस टू 6z। यहाँ पे क्या लिखा है n-1, यहाँ पे n कितना है, देयरफॉर n इक्वल टू हियर व्हाट, हाउ मच, दैट इज 3। यहाँ पे देखने का अच्छी तरह से, n इक्वल टू 3 मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना है, किसको, फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। एंड z0 इज व्हाट, z0 इज इक्वल टू पाई बाय 6, पाई बाय 6। तो एफ ऑफ जेड को मैं 2 बार डेरिवेटिव करता हूँ, तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा क्या आ जाएगा, देखो एफ डैश ऑफ जेड while differentiating this sine raised to 6 into sine raised to 5z, if I'm not wrong, into derivative of sine is what, cos of z. This is first derivative. Now f double dash of z is equal to f double dash of z equal to 6 into, यहाँ पे आप डेरिवेटिव इन दोनों का लोगे तो u इंटू प्रोडक्ट रूल रख जाएगा यहाँ पे, वो u इंटू वी कर देता हूँ, तो 5 एज इट इज cos raised to 4z into cos z as it is, sorry, 5 into sine of 4z into cos of z, ये u का पूरा डेरिवेटिव हो गया। अब v एज इट इज लिखा हूँ cos ऑफ z प्लस cos z एज इट इज, सॉरी cos z बोल रहा हूँ, साइन रेस टू पावर 5 into z and derivative of cos z is minus sine of z। अगर किसी को डेरिवेटिव नहीं समझा है तो यू कैन आस्क, बट इट इज़ वेरी सिंपल, 6 एज इट इज़। ये पूरा पार्ट आपका u था, ये पूरा पार्ट v ले लिया। अब जो रूल रहता है, v को एज इट इज़ रखा हूँ, डेरिवेटिव u का लूंगा तो 5 इंटू साइन रेस टू 4 जेड हुआ, फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस जेड हुआ, वो लिख दिया, प्लस फिर u को एज इट इज, आगे पीछे कैसा भी कर सकते हो, u को एज इट इज रखा, साइन रेस टू 5 जेड इंटू डेरिवेटिव ऑफ v ले लिया है। सो होप थिंग्स आर क्लियर टू एवरी वन। नाउ अब मैं वैल्यू रखने जा रहा हूँ, क्या, कौन सा वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या बताया गया, एफ ऑफ एफ रेस टू n-1 जेड ऑफ 0। तो n-1 मतलब ये वाला तुम्हारा, इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे। n कितना था 3, तो 3-1 करोगे तो क्या आएगा 2, मतलब 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद क्या रखोगे, z0। सो एफ डबल डैश ऑफ z0 इज हाउ मच, दैट इज पाई बाय 6 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ डायरेक्टली, 6 इंटू 5 इंटू, आप अच्छी तरह से देखोगे साइन रेस टू 4 है, तो साइन रेस टू पाई बाय 6, या आपको लिखना है तो आप ऐसा लिख दो, साइन रेस टू 5, सॉरी 5 बोल रहा हूँ, 4 पाई बाय 6 एज इट इज, इंटू ये कॉस जेड कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6 माइनस साइन रेस टू 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन रेस टू 6 पाई बाय 6। होप थिंग्स आर क्लियर है, अब खाली वैल्यू को रख के सिंप्लीफाई करना है। सो एफ डबल डैश ऑफ पाई बाय 6 विच इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखोगे अच्छी तरह, तो मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ, 6 इंटू 5 इंटू पाई बाय 6 मतलब कितना होता है, 1/2 का पावर 4 करोगे तो 1/16, कॉस स्क्वायर √3/2 होता है आई थिंक, नहीं √3 बाय, हाँ बराबर है, तो √3/2 अगर करोगे तो उसका स्क्वायरिंग करना है, तो 3/4 माइनस, ये तो आपको पता है ये 1/2, तो 1/64 लिख सकता हूँ इसको डायरेक्टली, क्योंकि 4 पे 16 था, 32 32 और 64 हो जाएगा।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एफ डबल डैश ऑफ पाई बाय 6 विच इज इक्वल टू, देखो सिंप्लीफिकेशन इजी है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप अगर प्रॉपर वे में अगर करते हो तो 64 के बेसिस पे जाता हूँ मैं। देखो 64 के बेसिस पे अगर जाऊंगा, कुछ कैंसलेशन होते हैं तो कैंसलेशन हम लोग कर देते हैं इस पार्ट को, या तो कैलसी से तो आप डायरेक्टली इसका आंसर ले ही आओगे, मतलब कोई ऐसा इफेक्ट मतलब डिफिकल्टीज नहीं है। सो वी शुड स्टार्ट by taking this part as 6 into 14 by 64 और 21 by 16 कुछ आएगा आंसर इसका, क्योंकि माइनस है ये चीज़। या इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लिकेशन है 64, 15 बाय 64, तो 15 माइनस 1 दैट इज़ 14 बाय 64 हो जाएगा ये पार्ट डायरेक्टली, और 14 इंटू 6 हो जाएगा। तो 14 इंटू 6 ऐसा करता हूँ, दो स्टेप में करते हैं इसको, तो 6 इंटू 14 बाय 64, सिंपल है देखो। सो 16 इंटू 4 64 हो गया, बाय 3 सा 15, तो 64 इधर भी 64 है, तो 15 माइनस 1 दैट इज 14 बाय 64 हो जाएगा। अब इस पार्ट को अगर कैंसलेशन में जाओगे तो देखो कैंसिल होता है या नहीं होता है। तो अगर डिफ़िकल्ट लगता है कैंसलेशन में कैंसिल करने के लिए, तो यू कैन स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ द वेरी स्मॉलेस्ट नंबर, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 2 से कैंसलेशन कर दो, या डायरेक्टली अगर आपको डायरेक्ट कैंसलेशन आपके लिए 9 सुटेबल है, सही 9 by 64 9 89 by 64 सर आंसर 21 बाय 16 89 by 89, yes sir 89 by 64 नहीं और भी कैंसलेशन चले जा सकता है देखो अच्छी तरह से। चलो देखते हैं पहले, तो फर्स्ट कैसे कैंसलेशन आप कर रहे हो, मल्टीप्लाई किए डायरेक्ट या कैंसलेशन पे चले गए? तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया 6 into 5 into 3 90 by 64 then minus 1 by 64 -1/64, तो ये 6 इधर भी मल्टीप्लाई होगा ना? यस सर बराबर है yes सर sir 1 आएगा ना। सो 6 इंटू 60 14/64, ये तो हमने ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लिया है, हमको सिर्फ इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना है। So I think the result will be like 21 by 60, sorry 16. Just verify it. यस सर राइट। राइट है, yes sir right बहुत सिंपल है। अगर अगर बहुत डिफिकल्ट लगता है कैंसलेशन वगैरह करने के लिए, तो 2 से सीधा स्टार्ट कर दो, 2 से करोगे 2-3 स्टेप में आपको आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। अगर कैल्सी है तो कैल्सी से तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हमको क्या मिला, एफ डबल डैश ऑफ पाई बाय 6, ये वैल्यू हमको मिल गया। अब हमको सिर्फ उसमें रखना है फॉर्मूले में। तो फाइनल रिजल्ट क्या लिखता हूँ मैं, देखो इंटीग्रल एफ ऑफ जेड हमारा क्या था, साइन रेस टू 6z अपॉन z माइनस पाई बाय 6 रेस टू पावर 3 इंटू डी जेड विच इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, 2 पाई अपॉन n माइनस 1, n इज हाउ मच 3, तो n माइनस 1 मतलब क्या हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू एफ रेस टू n माइनस 1 इंटू जेड ज़ीरो, तो ये क्या आएगा 21/16। अब ये 2 गेट कैंसिल हो जाता है, और फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलता है 21 पाई/16, और यहाँ पे आके आपका सम खत्म होता है। तो सिंपल प्रॉब्लम है। सबसे पहला इसमें मेन मोटिव क्या है, जो भी फंक्शन दिया है उसके नीचे जो z माइनस जेड ज़ीरो फॉर्मेट वैल्यू पॉइंट दिया है, वो पॉइंट को आपको चेक करना है कि वो इनसाइड द सर्कल है या आउटसाइड द सर्कल है या ऑन द सर्कल है।
अगर इनसाइड है देन इट वी हैव टू कैलकुलेट, अगर इस पे भी रहेगा ऑन द सर्कल पे भी रहेगा तो भी उसका रिजल्ट जीरो होता है, अगर आउटसाइड द सर्कल रहेगा तो भी रिजल्ट जीरो आ जाता है। आगे से हम देखेंगे, ये आएंगे ही हमको उस पार्ट के आंसर्स या क्वेश्चंस हमको। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क, वेरी सिंपल प्रॉब्लम, वो इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार आगे जो रेसिड्यू चैप्टर पढ़ोगे उसमें भी यही प्रॉब्लम है, लेकिन उसको रेसिड्यू के फॉर्मूले से सॉल्व किया गया है। आंसर इसमें भी 21 पाई आई बाई 16 ही आता है, यहाँ पे भी 21 पाई आई बाई 16, लेकिन दोनों के लिए फॉर्मूला अलग है। अगर एग्जाम में आते हैं प्रॉब्लम्स, वहाँ पे अगर ऐसा नहीं लिखा गया है कि यूजिंग रेसिड्यू और यूजिंग कॉम्प्लेक्स सॉरी कॉचीज इंटीग्रल, तो आपका चॉइस रहेगा, आप कोई भी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर स्पेसिफाई किया जाएगा कॉचीज इंटीग्रल या रेसिड्यू, तो फिर आप रेसिड्यू से ही आपको सॉल्व करना है। तो ये चीज़ आपके लिए वो है कि आपको अगर कुछ ऑप्शन नहीं दिया, सिर्फ इवेल्युएट आया है साइन रेस टू 6 बाय वेर सी इज मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, तो इट इज़ योर choice whether you have to use residue or whether you have to use this Cauchy's integral। तो दोनों से सेम रिजल्ट आपको मिलता है। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम, किसी को भी डाउट है तो यू कैन आस्क। इवैल्यूएट, सेकेंड क्वेश्चन, काउंटर इंटीग्रल e raised to 2z upon z minus 1 raised to power 4 into dz, where c is the circle। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप डायग्राम बनाओ शो करो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, समझने के लिए मैंने बनाया था। z इक्वल टू 2, आपने भी देखा कि उसमें कोई चीज़ का ऐसा ज़रूरत नहीं लग रहा था। सिमिलर वे से आपको सॉल्यूशन करना है, कोई बहुत ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन आप स्टार्ट करोगे, आप खाली लिखना याद रखो कि काउंटर क्या दिया है। तो सिंस द पॉइंट z इक्वल टू 1 हो जाएगा, z माइनस 1 रेस टू पावर 1 पावर 4 है। ये भी सिमिलर वे से, सिंस z इक्वल टू 1, ये देखने का z इक्वल टू 1 लाइज, क्योंकि z इक्वल टू 1 है और ये मॉड ऑफ z इक्वल टू आपको क्या दिया है 2, तो 2 रेडियस है और ये z इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली वो पॉइंट आपका क्या रहेगा 1, तो 2 से तो छोटा ही है, मतलब इनसाइड द सर्कल ही आने वाला है। लाइज इनसाइड द सर्कल mod of z equal to 2, therefore f of z e raised to 2z is analytic। is analytic So close integral f of z upon upon z minus z0 into dz, which is equal to 2 pi I upon z minus n minus 1 factorial f raised to n minus 1 z0। So f of z is what? E raised to 2z, its first derivative will become f dash of z, which is equal to 2 into e raised to 2z. Double derivative will becomes what? F double dash of z, 4 into e raised to 2z, and triple derivative will becomes 4 है ना, तो n equal to 4 है तो 3 तक जाओगे आप, तो f
triple dash of z is equal to 8 into e raised to 2z. So we have to just substitute values in formula एक साथ में रख रहा हूँ. So integral f of z is what? E raised to 2z upon z minus 1 raised to power 4 into dz is equal to 2 pi I upon 4 minus 1, that is 3 factorial f ये वाला वैल्यू इसमें खाली आपको 1 रखना है, तो 8 इंटू ई रेज टू 2 बिकॉज z इक्वल टू आपका 1 है. सो जस्ट सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू हियर. सो 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 हो जाता है आपका ये पार्ट. तो कैंसलेशन कर सकते हो. 2 1 2 2 3 6, मतलब फैक्टोरियल खाली निकाल दो, बाकी पूरा सेम आ जाएगा. तो ये आपको आएगा 8 पाई आई इंटू ई रेज टू 2 बाई 3, और ये आपका फाइनल रिजल्ट आपको मिलता है. होप थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन. सर दिस वो दिस यस, सर वो f रेस टू n माइनस वन जेड जीरो वाला टर्म. यही है ना, एफ ऑफ रेस टू एन माइनस वन. तो एन इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 4 है. तो 4 माइनस वन 3, मतलब 3 बार आपको डेरिवेटिव करना है. तो 3 बार डेरिवेटिव किया यहाँ पे, और उसके बाद z0 मतलब क्या है तुम्हारा 1. तो 1 रखोगे तो क्या आएगा? 8 इंटू ई रेस टू 2, वही आएगा ना यहाँ पे. ओके. समझ में आया? मैंने डायरेक्ट किया है. प्रीवियसली सम में अगर देखोगे तो यहाँ पे ऐसा पूरा लिखा था n इक्वल टू कितना दिया है, अगर आप अच्छी तरह से देखोगे. n इक्वल टू 3z0 यहाँ पे वैल्यू था आपका. अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो ऐसा यहाँ पे, दैट इज n इक्वल टू 4 एंड z0 इज इक्वल टू 1. तो अब आप रखोगे यहाँ पे वैल्यू जब, देन यू विल गेट n माइनस वन, मतलब ये डेरिवेटिव के लिए है. ये चीज़ ध्यान में रखना है. n जितना भी रहेगा उससे एक कम डेरिवेटिव आपको निकालना है उस फंक्शन को. n 4 है तो 3 टाइम्स डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है. तो जो भी थर्ड टाइम डेरिवेटिव आ गया उसमें n z0 रख देना है. तो ये 8 इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा. तो 8 इंटू ई स्क्वायर हो गया एज इट इज़ है. 2 पाई एज इट इज़ है. n माइनस वन मतलब 4 माइनस वन, दैट इज 3 फैक्टोरियल एज इट इज़ है. सो दैट यू विल गेटिंग दिस काइंड ऑफ रिजल्ट. नेक्स्ट टाइम थोड़े और प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे फ्रॉम मंडे ऑन ट्यूसडे. Now wait, I will share the attendance link and you have to fill that link. Just fill this link as well as Google Meet attendance, both I will take. So hope you will got the link and just start filling this part so that I will get the responses. दूसरे किसी का मत भरना, ओनली यू हैव टू फिल योर्स ओनली, बिकॉज यहाँ से भी मैं अभी अटेंडेंस लूँगा. एक्सटेंशन है तो दोनों सेम होना चाहिए. Right now here only 27 students. So I just required